Hey guys, welcome back to my channel Avasthi's Crafts and Fun. So, Raksha Bandhan is at the corner, and we all know on this day sisters tie Rakhis to their brothers. So, let's start making some of the beautiful Rakhis for our brothers because on this day we have to tie Rakhi to our brothers. So, let's start making all the Rakhis. So, the first Rakhi we will make is this. Looking cute. The substitute of this is this yellow one. This is medium and light color. So today we'll make the Rakhi with this red wool. So I have made combination medium color, light color and dark color. So let's get started. First take the wool and take your 3 fingers of your palm and just start rotating it around your fingers and rotate it till then it can be in a large amount. So like I am rotating, you have to just rotate it continuously. Look, and you can do with your 4 fingers. It's your choice. So it's now done. We'll cut it with the help of the scissor. And I've cutted it. Now I'll take out with my fingers and now I will tie it from the center around with the help of a wool. Tie it very tightly, guys, because we have to make the pom-poms. So here we have tied it and now we will cut it with the help of our scissors from the center. So as you can see, you have to cut just like it as I am cutting. So हम यहाँ पे बना रहे हैं पॉम पॉम फॉर द राखी. सो इसलिए हमें दोनों साइड से कट करना पड़ेगा. कट कर लीजिए इसे जैसे मैं कर रही हूँ. And then with the help of a toothbrush which you use in craft or painting, just brush it for giving a nice look and a perfect look. Like I am doing, आपको ऐसे ही करना है. इससे हमारे जो कटेड पीस हैं जो अंदर रह गए हैं वो निकल जाते हैं. देखिए पॉम पॉम्स रेडी हो गया है. बट अब हमें इसके बिगर पार्ट्स कट कर देने हैं विद द हेल्प ऑफ द सिजर. नाउ लुक, आई हैव कटिंग. You also have to cut like this. The rest parts you have to keep it aside and again brush it with the help of the toothbrush. It's done now. And now take a piece of a circle paper, paste it between the pom-pom with the help of the glue. Apply the glue and just paste it in the center for the face of the Rakhi. So it is very easy to make. Now I am just pasting it. You can see. Press it gently and tightly. Just press it with your palm and with your fingers. I have pasted. Now we need to use googly eyes. Here I have used googly eyes, or you can make the eyes with the help of the sketch pen. Now you will paste the googly eyes with the help of the glue. Here you can see I am pasting with the help of a glue. Paste the googly eyes one by one and press it gently and slowly. It's done now. Now just you can see, now take the pink sketch pen or pink colored pen and make a smiley under the eyes. So here I am making the smiley. It's done now. You can see you can use color pencil also and sketch pen also. Here you can see the smiley is done. Now just turn it around. Now we'll use the decorative beads for the cheeks. So I'm using light pink decorative beads for the cheeks. So here I'll paste as the cheeks. Now you can see it is pasted and it is looking so cute. So just turn it around, take a big piece of circle then the face and apply the glue and paste it over the center of the pom-pom. So as you can see, I'm applying, and here you have to paste it at the center and you have to take a big circle. So just gently press it and be aware that your googly eyes did not move as I am setting it, and again apply the glue over it. And I am applying the glue and apply one line also so that we paste the strip for the Rakhi. So here I have this pink woolen strip of the Rakhi, and here I have done 2 knots and I have taken 2 strips and just paste it and see that it is comfortably done. So I have pasted it and again paste a piece of circle paper over it so that it doesn't take it out.
So look, it's done. It's looking so cute and it's easy to make. So let's make our second Rakhi. Our second Rakhi is this. This is very easy. This we have to make from the wool. We have to make a long bead. आपको छोटी बनानी है जैसे हम अपनी बालों की बनाते हैं. यहाँ मैंने 4 स्टेप्स ली हैं और 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके गुत्थ बना ली है. फिर दोनों साइड में मैंने नॉट बांध दी है एंड उसके बाद मैंने इसमें बीड्स लगाए हैं एंड ये डेकोरेटिव बीड्स हैं. आप कोई भी बीड स्टिच भी कर सकते हैं. तो ये देखिए गाइस, कितनी सिंपल सी और कितनी सुंदर राखी बन गई है. हैंड में भी ये बहुत सुंदर लगती है. इसी तरीके से मैंने एक और राखी बनाई है जो रेड वूल से बनाई है. ये भी बहुत सिंपल है एंड सेम ही तरीके से बनाई है मैंने. एंड इसके बाद मैंने इसमें लगाए हैं वाइट बीड्स. सो ये बहुत सिंपल है. जैसे हमने पहले वाली अपनी राखी बनाई थी वैसे ही हमें ये बनानी है. सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें लगा दिए हैं ये वाइट बीड्स और ये हैंड में भी बहुत सुंदर लगती है. ये देखिए कितनी क्यूट, सिंपल एंड ब्यूटीफुल है. आप भी इसे घर में इजीली बना सकते हैं. अब नेक्स्ट राखी इज़ दिस. इसमें आपको नॉर्मल बीड बना के नॉट्स लगा के एक पम पम बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था अपनी फर्स्ट राखी में. और इसमें मैंने टू कलर्स लिए हैं बीड बनाने के लिए. फिर पम पम को आपको स्टिच कर देना है पीछे एंड उसके बाद बीड लेके एक पर्ल लेके उसे भी स्टिच कर देना है पम पम के सेंटर में. लाइक दिस बन गई हमारी राखी एंड ये हमारे हैंड में भी बहुत सुंदर लगती है. एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी इजी टू मेक. आवर नेक्स्ट राखी इज़ दिस वन. इसके लिए मैंने बीड बना ली है ऑलरेडी एंड हमें नॉट्स बांध देने हैं. एंड मैंने यहाँ 2 कलर से बीड्स बनाई हैं एज यू कैन सी. एंड नाउ वी हैव टू मेक द बो. सो बो के लिए यहाँ मैंने दिया है कार्डबोर्ड. आप कोई पेपर ले सकते हैं बट वो कार्डबोर्ड की तरह हार्ड होना चाहिए. और हम बनाएंगे बो इस नायलॉन थ्रेड से या स्विंग थ्रेड आप बोल सकते हैं. अब इसे हमें कार्डबोर्ड पे ऐसे प्लेस करना है लाइक दिस ऑन द कार्डबोर्ड एंड फिर इसे रोटेट करना है कार्डबोर्ड के अराउंड सो दैट वी कैन गेट अ बो. एंड जब तक हमें रोटेट करना है जब तक ये लार्ज अमाउंट में नहीं हो जाता. सो ये देखिए ये लार्ज अमाउंट में हो गया और कंप्लीट भी हो चुका है. अब हम थोड़े सा थ्रेड छोड़ के इसे कट कर लेंगे एंड कट, ये देखिए मैं कट कर रही हूँ. अब हम इसे कार्डबोर्ड से निकाल लेंगे और जो थ्रेड हमने छोड़ा था उसी को बीच में रोल करके एक नॉट बांध लेंगे. सो यहाँ मैंने नॉट बांध ली है. अब हम इसे काटेंगे जैसे हमने अपनी पॉम पॉम बनाने के लिए काटा था ना, सेम तरीके से काटना है. सेंटर में कैंची घुसाइए एंड काट दीजिए. इट्स वेरी सिंपल टू मेक. एंड थोड़े से जो आउटर कवरिंग में थ्रेड निकले हैं ना उसे भी कट कर लीजिए. नेक्स्ट साइड से भी सेम प्रोसेस कर लीजिए एंड जो बचे कुछ हैं उनको भी कट कर लीजिए. अब थोड़े थोड़े साइड वाले कट कर लीजिए जो बाहर को निकले हैं. अब विद द हेल्प ऑफ अ टूथ ब्रश आप इसे ब्रश कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ. इससे इसका एक फाइन लुक आता है और प्रॉपरली ये बन जाता है. एंड दोबारा से हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स कट कर लेंगे, मीन्स एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर लेंगे. एक्स्ट्रा थ्रेड कट करने से ये और भी ज़्यादा फाइन बन जाता है. अब आप दोबारा से ब्रश कर लीजिए इसे. अब यहाँ ब्रश करना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अगर आप ब्रश कर लेंगे तो उसके जो आउटर कवरिंग और है अंदर जो वो निकल जाती है एंड वी कैन ईजिली कट इट. सो यहाँ मैंने कट कर लिया है. अब हम ये बीट लगा के इसे स्टिच कर लेंगे. अब यहाँ देखिए मैंने बीट लगा के इसे स्टिच कर लिया और इस बो को स्टिच करके अपनी थ्रेड में लगा दिया. बन गई हमारी राखी. सुंदर लग रही है ना, बहुत ईजी है. आइए अपनी नेक्स्ट राखी बनाते हैं. हमारी नेक्स्ट राखी है ये वाली. इसके लिए हमें पॉम पॉम बनाना है जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था. ऐसे ही हमने एक सेम राखी बनाई है जो पिंक वूल से है. बहुत सिंपल है. फिर हमें थ्रेड बनानी है. थ्रेड के लिए आप कितनी भी स्ट्रिप्स ले लीजिए, फिर नॉट्स बांध दीजिए उसमें और उसके बाद पॉम पॉम के बीच में ये बीट लगा के स्टिच कर लें थ्रेड में. बन गई राखी. नेक्स्ट राखी इज दिस वन. ये आपको क्विलिंग से बनानी है. और सिंपल सी राखी लिखेंगे. क्विलिंग से पेटल्स बना के पेपर में पेस्ट करके कलावा या कोई भी थ्रेड लगा के उसमें बीट्स लगा के बन गई राखी. इतनी सिंपल है. हैंड में भी बहुत सुंदर लगती है ये और 2 मिनट में बन जाती है. आवर नेक्स्ट राखी इज़ दिस वन. ये मैंने बनाई है एक फ्लावर स्ट्रिप से. ये अगर आपके पास फ्लावर स्ट्रिप हो तो आप उससे बना सकते हैं और नॉर्मली इसमें स्टिच कर दीजिए बीड्स. नेक्स्ट राखी इज़ दिस. ये मैंने इस रूप से बनाई है एंड इसमें बस हमें 1-2 बीड्स लगाने हैं. बहुत सिंपल है ये वाली राखी. तो नेक्स्ट राखी इज़ दिस वन. ये तो मैंने मेटल की फ्लावर बीड से बनाई है. अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उससे बना सकते हैं ये वाले बीड से. एंड फिर वूल से थ्रेड लगा के उसे स्टिच कर दिया. वेरी इजी. ये हैंड में भी बहुत सुंदर लगती है.
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी पहन रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, एंड वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ you like my video, please like my video, and please tell me in the comment section how do you like my video. And don't forget to subscribe my channel and click the notification bell so that you get all the updates of my video. Thank you very much. We'll be very soon back with another video.